and our convener, Vardi, Dr. Rajiv Puri, who is quite instrumental in paving the way for its grand success, and you will be happy to know that for the very first time of introduction in the previous year, we have been able to score 2 stars for ISC Council, which is a big achievement. We could muster upon, say, 33 activities in the previous year, which was itself a record, and we happened to be there in Punjab University, Chandigarh, where a regional meet was held, and this was a great sense of pride that for the very first year we were put on record. So, today, extending the session further, we are going to have a very knowledgeable talk regarding design thinking, critical thinking, and innovation. These things, thinking, innovation, idea, these are the buzzwords of the day. The other day we had our chief guest, Dr. Jaswinder Kaur, as the convocation chief guest, and her convocation address was primarily based upon these innovation activities, the startups which are coming in our own state, Punjab. And she gave us a very good data and a very encouraging data that every day we are coming up with, say, about 1.37 startups. So although we may think that Punjab is lacking behind in such activities or startups, but still it also gives us motivation that there are thinking minds which come up with new ideas, and we are registering startups at a rate of about 1.5 a day. So for you, I gave an example in my class even today that we feel very excited when we watch, say, F1 race on a TV and people maneuvering their cars in and around, turning at a high speed, driving at 350 or 400 miles per hour. But until and unless we put it to practice, not driving a car as such, it is just an example. Until we put into practice, there is not of much use. So we have been conducting these workshops, these seminars throughout the year, calendar year, and it takes a lot of effort to bring such kind of talks and the preparation behind it. So today also Dr. Rajiv Puri has put up great efforts in setting up this particular talk of design thinking, innovation thinking, and moreover critical thinking. Although it may come from within, but I hope sir will just focus on how to develop thinking. Sometimes you have an idea, you are not able to bring it into a picture. So what is actually thinking, how do you think, will be the topic of the day today. So without much of ado, I would like the proceedings to start, but before that, I will invite our worthy principal, Dr. Rajesh Kumar, to please come up on the stage and share his words of wisdom. Thank you very much, Professor Vishal. Source person of the day, Dr. Rajiv Puri, Professor Puneet Puri, other teachers of the Department of Computer Science, and very dear students. Today, under the banner of IIC, Institutional Innovation Council, we are going to have a very important talk that is on design thinking, critical thinking, and innovation design. Dear students, today is the day, a time of innovation. Today is the era of skill development, because the world is moving at a very fast pace, and Indians, they are contributing in this development in a very big way. In the educational institutions, colleges and universities, this IIC has been launched, where under the banner of this IIC, the students, they are encouraged to have the innovative thinking, critical thinking. They should come up with their own novel ideas, because your students of either science or commerce or arts or computer science, in all the subjects, you need to think differently. Whatever is written in your books, whatever discoveries and inventions have already been made by the scientists, forget about those, because those are already on record. They are already known to you, that who did what. Now it is your time to discover, to invent, to innovate, so that your name is also there that you did this.
And for that, you need not do very big things. Very small things, they can contribute towards these innovations. Because the patenting, when you have an idea, anything that you make which is slightly different from any existing thing, that becomes your innovation. So that innovation are there, that will become patent on your name. You can get it patented that yes, I have done it. And fortunately, you are living and born and brought up in the state of Punjab. And if you look at the Punjabis, they are the biggest jugaadis. They have made so many जुगाड्स, इतने ज़्यादा जुगाड़ उन्होंने बनाए हैं कि वो जुगाड़ जो है बाद में मल्टीनेशनल कंपनी ने उनके जो है डिज़ाइन को चोरी किया. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जितनी भी एग्रीकल्चरल मशीनरी है, उनको कितना उन्होंने मॉडिफाई किया. और ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है, ये भी एक तरह का इन्होंने जुगाड़ ही बनाया उसमें, राइट. तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए इनको यूज़ करना, अलग अलग जो है वो लोड कैरियर जो बनाने. आपने एक छोटी गाड़ी देखी होगी कड़ुका, देखा आपने कभी? नहीं, रोड पे चलते देखा आपने? तो वो कड़ुका जो है बेसिकली नथिंग, इट इज किर्लोस्कर इंजन जो है वो रख दिया वहां पे, और 20-25 लोगों को कैरी करने के लिए या लोड कैरी करने के लिए उसको जो है वो रोड के ऊपर उतार दिया उन्होंने. बच्चों को स्कूल लेके जाना, खेतों से जो है वो चारा लेके आना या ग्रेन्स लेके आना, इस तरह के काम जो है वो वहां पे करते हैं, उसके ऊपर लोग करते हैं. लेकिन वो जो कड़ुका जिसको हम कहते हैं, दैट इज नॉट एनी कैटेगरी ऑफ व्हीकल. उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी कभी भी, उसका कोई नंबर नहीं होगा. नंबर क्यों नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? बिकॉज वो किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है. ना आप उसको 2 व्हीलर कह सकते हो, ना 4 व्हीलर कह सकते हो, ना 3 व्हीलर कह सकते हो उसको. चाहे उसके 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन वो कौन सी कंपनी का बना है, कौन सा मॉडल है उसका, कौन सा डिजाइन है उसका, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वो एक एग्जांपल है कि अगर हम एक किर्लोस्कर का इंजन रख के उसको चला सकते हैं, उसको रोड के ऊपर उतार सकते हैं, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, they can make programs, they can make smart gadgets, they can make these smart appliances, and the students of commerce and science, they can also innovate accordingly. Dr. Rajiv Puri is very entrepreneurial as well as innovative. He is very sound technically, and I'm sure that today he is going to take your session, and he will definitely come up with some innovations or new things. So I congratulate the convener IAC, Dr. This Rajiv Puri, other members of IAC, and all the students who are gathered here. So please, from this session, you must take away something. It's not that you have come here, you sat here for 1 hour, you listened to the talk and went away blank. No. Make your mind think. Make your mind run in different directions. That if he has done this, I can add this dimension to this. I can add new feature to this product. So that will become your innovation. You can get patented at your name. I've seen now the students in the colleges and even at the school level. At the school level, the students, they have started innovating. They are making very new products. And Government of India is facilitating. At the school level, they have introduced a lab called Atal Tinkering Lab. Atal Tinkering Lab by the name of our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So tinkering means, जैसे हम कहते हैं ना, पंगे लेना, इधर से उधर टंका लगा दिया, उधर से इधर कर दिया, टिंकर करना किसी चीज के साथ. तो उसका लैब का नाम ही टिंकरिंग रखा कि बच्चे वहां पे जाएं, बैठें और कुछ भी वहां पे वो करें. शोल्डरिंग रख दी वहां पे, कुछ सर्किट रख दिए वहां पे, कुछ इक्विपमेंट रख दिए वहां पे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के. तो बच्चे कम से कम उसको देखेंगे, उसको जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, उसको फिक्स करेंगे दोबारा, तो उनके मन में कोई ना कोई नई चीज आएगी. सो दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ अटल टिंकरिंग लैब इज. So, but in colleges we have very good labs where you can tinker, where you can think, and you can design the things. So, thank you very much. All the best. Thank you so much, Principal Sir, for your insights and experiences and words of wisdom and motivation. Taking this even further, I would again request you, sir, to please welcome our Speaker of the Day, Dr. Rajiv Puri, as a token of appreciation. I would like to request Puneet Puri, the coordinator of today's requester, Namrata, Professor Reena, and other members of IIC and faculty to join us.
So without taking much of time, I would now straight away pass on the mic to Dr. G. Puri to start the session. Very good afternoon to all. So today we are going to start with this session, design thinking. The takeaways from this workshop is what is design thinking, the design thinking process, design thinking steps, empathy mapping, and design thinking and agile development. So before discussing or starting with this design thinking, let us discuss के इसकी opportunities क्या हैं. As you can see here, there are more than 6,000 design thinking jobs available nowadays. और इसमें से रोज की जो जॉब हैं वो 262 ओपनिंग्स रोज की रोज निकल रही हैं डिजाइन थिंकिंग की. और यू कैन सी द कंपनीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे. बेंगलोर बेस्ड है, नोएडा बेस्ड है, एयरटेल है, यूनिलीवर है. इस तरह की कंपनीज को ये डिजाइन थिंकिंग प्रोफेशनल्स चाहिए. बिफोर नोइंग अबाउट ऑल दिस, आईआईसी से पहले डिजाइन थिंकिंग में मैं सोचता था कि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे डिजाइनिंग सिखाई जाएगी कि कार्टून्स कैसे ड्रॉ करने हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाना है या कुछ है. बट दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. डिजाइन थिंकिंग लोग क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, दिस इज द रीजन. जो डिजाइन थिंकिंग प्रोफेशनल्स हैं इनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, दीज आर रेंजिंग फ्रॉम 18 लाख टू 50 lakhs. ये 18 लाख से शुरू हो रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट एक महीने का वो लोग स्टार्टिंग में ही कमा रहे हैं. पर उसके लिए आपको अपना टैलेंट भी शो करना पड़ेगा. ठीक है, ये मेल और फीमेल की रेशियो दिखाई हुई है. ऑल्दो फीमेल्स आर गेटिंग लेसर सैलरी बट इट्स स्टिल हैंडसम सैलरी. ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग, क्या है ये? इट्स अ स्प्लिट एयर कंडीशनर. किसी एक बंदे को ये स्प्लिट एयर कंडीशनर दिया गया, ये उसके पार्ट्स हैं, आपको बॉक्स में मिलेंगे, आपने ये एसी फिट करके आना है. तो बंदा कहता है जी कैसे फिट करना है मुझे नहीं पता, आप जरा मुझे बता दो कि कैसे फिट करना है इसको. तो उसको ये डायग्राम दे दी गई कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिट दिस एसी. इसकी कौन सी पाइप कहाँ पे लगनी है, कनेक्शन कहाँ से करना है, वायरिंग डायग्राम ये सारी पकड़ा दी गई और उस बंदे ने एसी फिट कर दिया. और एसी कैसे फिट किया, दिस इज द पिक्चर. ये पिक्चर कुछ लोगों को देर से समझ लगी. आया सबको भी ऐसे ही हंस रहे हो. लग गई समझ. ठीक है, सो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. और ये आइडिया आया कहाँ से, थोड़े दिन पहले मुझे ट्विटर पे नजर आया जी. मिस्टर आनंद महिंद्रा ने ये 2018 में ट्वीट किया था. उसको व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया था ये पिक्चर. इंजीनियर हु इंस्टॉल्ड दिस एसी हैज अ ब्रेन वायर्ड द रॉन्ग वे. उसका दिमाग ही उल्टा था बंदे का. या फिर वो जो घर का मालिक था उसने ये सोचा कि यार बाहर आते जाते हुए थोड़ी ठंडी हवा मिलनी चाहिए, तो उसने ये एसी इस तरह से लगा दिया. सो ये दिखाने का पर्पस क्या है कि आप टेक्निकली जितने मर्जी साउंड हो, पर अगर आप अपनी कॉमन सेंस नहीं लगाओगे उस चीज में तो यू आर गोइंग टू फेल. आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. किसी भी चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पहले प्रॉब्लम सोचने की, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, वहां पे आपको ये डिजाइन थिंकिंग जो है ये हेल्प करेगा. सो है क्या डिजाइन थिंकिंग? इट्स एन एक्सेप्शनल आइडिया जनरेशन मेथोडोलॉजी. आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं उसकी मेथोडोलॉजी है. आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आते हो तो आप लोग कभी सोचते हो कि ऐसे कर लें सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कर लें सॉल्व हो जाएगा. वो आइडिएशन कैसे लेके आनी है माइंड में, दिस इज डिजाइन थिंकिंग. इट इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर इल डिफाइंड और अननोन. किस तरह की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहा है? ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो प्रॉब्लम्स इल डिफाइंड हैं, जिनका अभी हमें फिलहाल सोल्यूशन नहीं पता, या कोई सोल्यूशन पता तो वो कोई इतना इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है. इट्स एन इटरेटिव मेथड. इटरेटिव मेथड मतलब जिसमें आपको बार बार किसी चीज को रिपीट करना है. सो मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फॉर लूप होती है, वाइल होती है, डू वाइल होती है. जनरली कॉमर्स वालों ने भी पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम पे.
तो दैट इज बेसिकली इटरेशन प्रोसेस, जिसमें बार बार आप कोई ना कोई चीज रिपीट करते जाते हो एंड यू इंप्रूव ऑन योर रिजल्ट्स. देन रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स इन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. आप प्रॉब्लम को अलग अलग स्ट्रेटजीज में उसको रीडिफाइन करोगे और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालोगे जो वैसे देखने में अपरेंट नहीं लग रहा. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली डिजाइन थिंकिंग. अभी एक और मैं अभी ये देखा था, आप लोगों ने अटेंडेंस साइन कर दी, तो मुझे ये एसी वाली एग्जांपल याद आ गई कि आप लोगों ने अटेंडेंस कैसे साइन करी है. कुछ बच्चों ने यहाँ पे पहले पेज पे साइन कर दी, कुछ एक ने दूसरे पे कर दी, कुछ एक ने तीसरे पे कर दी. अब प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए कि हम इसको कंसोलिडेट करके एक पेज में कैसे सबमिट करेंगे. तो आपने एसी उल्टा लगा दिया. चलो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ख्याल रखना. ओके, कुछ खाने पीने की बात हो रही है. किसका बर्गर है ये, कौन सी कंपनी का है, कैसे पता लगा? चीज से पता लगा. मैकडॉनल्ड. सो मैकडॉनल्ड, दो केस स्टडीज बहुत पॉपुलर है डिजाइन थिंकिंग में, एक मैकडॉनल्ड्स की और एक नेटफ्लिक्स की. मैंने मैकडॉनल्ड्स की डिस्कस कर ली. मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस काफी सालों से चल रहा था बट दे वर नॉट गेटिंग गुड ग्रोथ. लोग बर्गर खा खा के बोर हो रहे थे बीच बीच में, और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स पे जाना बंद कर दिया, डिलीवरीज में मंगाना शुरू कर दिया. पर मैकडॉनल्ड के सीईओ ने सोचा कि ये क्या बात है, क्या रीजन है कि कस्टमर्स आने बंद हो गए या बिजनेस डाउन जाना शुरू हो गया. सो उन्होंने ये डिजाइन थिंकिंग को यूज किया. डिजाइन थिंकिंग वाले पर्संस उन्होंने एम्प्लॉय किए और उन्होंने ऑल टुगेदर ओवरऑलिंग की है अपने सिस्टम में. सो व्हाट दे डिड, आप लोग ये ऊपर वाली पिक्चर देखो और नीचे वाली पिक्चर देखो, कौन सी पसंद है? नीचे वाली. सो दिस इज यंग जनरेशन. जब हम लोगों ने पहली बार अपने सिटी में मैकडॉनल्ड्स देखा था तो ऊपर वाली पिक्चर थी, ऐसी चेयर्स पे बैठ के हम लोगों ने बर्गर खाया था एंड स्टिल वी एंजॉयड. फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम पास होता गया. अब हम लोगों को लगा है क्या उसका फर्नीचर ही नहीं अच्छा मैकडॉनल्ड का, क्या करना, छोड़ो पर ड्राइववे से ले लेते हैं बर्गर, चलो बर्गर ही खाना, कोई बात नहीं. और धीरे धीरे वो भी उसकी एंगेजमेंट कम होती गई. तो दैट इज द रीजन, जैसा हम लोगों ने सोचा वैसे ही दुनिया के दूसरे लोग भी सोच रहे हैं. तो मैकडॉनल्ड ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट टू दिस टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. दिस इज बिकॉज ऑफ डिजाइन कंपैरिजन में मैस लग रही है ना. हाँ, जैसे मैस में खाना वो खा रहे हैं. हॉस्टल की मैस लग रही है बिल्कुल. जब ये मैकडॉनल्ड शुरू हुआ था तो हम लोगों को इस तरह के बोर्ड्स नजर आते थे जहाँ पे हम लोग पेमेंट करते थे ना, पेमेंट काउंटर के ऊपर वहाँ पे एक मेन्यू फिक्स होती थी. मेन्यू में इस तरह से बर्गर बनाए हुए ललचाने के लिए. और अब आजकल इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड हैं. ठीक है, कौन सा बेटर है? नीचे वाला. ऊपर वाला? ऊपर वाला तो बेटर होता ही है. बोल रहे हैं. हम लोग पहले ऑर्डर करते थे, काउंटर पे जाके लाइन में लगना पड़ता था. और अब आजकल आप लोग अगर रिसेंटली मैकडॉनल्ड विजिट किया हो तो जो नए मैकडॉनल्ड्स खुल रहे हैं उन सब में इस तरह के कियोस्क लगे हुए हैं, टच कियोस्क है. ठीक है, इवन मेरे बच्चे भी जब जाते हैं तो उनको खुद होता है कि मैंने ऑर्डर करना है पापा, टच स्क्रीन पे. उसका मेरी छोटी वाली का हाथ नहीं पहुंचता, उसको गोदी में उठा के टच कराना पड़ता है कि अच्छा आप ये वाला प्रेस करें, ये वाला प्रेस करें. सो दिस इज ऑल डिजाइन थिंकिंग. ऐप से ऑर्डर किया कभी आपने मैकडॉनल्ड में? क्या बेनिफिट मिलता है? कूपन्स मिल जाते हैं ऐप पे आपको. सो इफ यू गेट समथिंग फॉर 300, अगर आप ऐप से उसको ऑर्डर करते हो तो आपको 230 235 में मिल जाता है मील. ठीक है, सो दे डिजाइन्ड दिस ऐप टू ऑर्डर अहेड. ये चीज नहीं देखी होगी आप लोगों ने, कर्ब साइड. ये देखिए अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं शुरू हुई. इसमें क्या है बेसिकली कि पार्किंग लॉट में वो लोगों ने नंबर लगा दिए. आप लोग ड्राइव करते करते अपने फोन पे ऑर्डर प्लेस कर दो. ठीक है, एंड योर ऑर्डर विल बी रेडी. यू कम टू मैकडॉनल्ड एट योर रिस्पेक्टिव काउंटर और वहां से आपका बंदा पहले ही वो ऑर्डर लेके खड़ा होगा. तो दैट मीन्स कि वो ड्राइव वे में जो लॉन्ग क्यू में लगना पड़ता था, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, वो टाइम भी उन्होंने कट कर दिया. ठीक है, 1-1.5 किलोमीटर पीछे से आप लोग ऑर्डर प्लेस कर दो और by the time you reach McDonald's, your order is ready and somebody is standing over there to deliver your order. Then McDonald's में all day menus उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी. सारा दिन आप जो भी ब्रेकफास्ट खाना, लंच खाना, वो सारा दिन आपको मिलता है.
So these were the major breakthroughs that they did. Futuristic looking smooth wooden and glass surfaces, digital menu boards that run the promos, touch screen kiosk where the customers can self-order and customize, a mobile app for ordering, curbside delivery, all-day breakfast, no frozen meat, new menu items and quick delivery. So these were all the innovations that McDonald's introduced in their business to improve. And what was the result? 13 consecutive quarters में उनको growth quarter by quarter उनको मिलती गई and they are serving the happy customers. ठीक है, एक बर्गर बनाने वाली कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया. बर्गर की क्वालिटी उनकी वैसी ही है जो पहले से चल रही थी, ठीक है, पर एम्बियंस उन्होंने चेंज कर दी, डिलीवरी का प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया. ये क्या है बेसिकली? दीज आर द कस्टमर्स पेन पॉइंट्स. बर्गर सबको पसंद है, मुझे वो चेयर पे बैठ के खाना पसंद नहीं था, उन्होंने चेयर्स ही ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दी. मुझे लाइन में लग के ड्राइव वे पे अपनी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट करना पसंद नहीं था, उन्होंने कर्व वे पे डिलीवरी देनी शुरू कर दी. मुझे अलग अलग ऑर्डर्स और ऑफर्स देखने थे, आई कैन स्क्रॉल ऑन माई मोबाइल और वहाँ पे मैं ऑफर्स देख सकता हूँ. तो उन्होंने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को एड्रेस किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव किया, अपने इंफ्रा को इम्प्रूव किया एंड they came into the business once again. So why this design thinking is important? It is basically a human centric technique. ह्यूमन सेंट्रिक टेक्निक क्या है बेसिकली? कि ह्यूमन को आपने सेंटर में रखना है, बंदे को, जो आपका कस्टमर है वो कस्टमर सेंटर में होना चाहिए, और जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हो उसका मेन फोकस बंदा होना चाहिए कि इस बंदे को पसंद आनी चाहिए वो चीज़. इसके अकॉर्डिंगली अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे ये बटन होना चाहिए तो वहीं पे बटन मिले. अभी जैसे मैं ये इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, ये रिमोट है, तो मैं अभी डिजाइन थिंकिंग के बारे में सोच रहा था कि ये रिमोट कैसे, इसको भी उन्होंने सोचा होगा. अब इसमें एक अप डाउन बटन ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, और नीचे लाइट का बटन है, और ये अप डाउन के जो बटन्स हैं ये थोड़े से रिज्ड हैं. मैं अपने अंगूठे से फील कर पा रहा हूँ कि ये अप वाला बटन है और ये नीचे वाला बटन है, आगे कैसे जाना, नीचे कैसे जाना, और ये लाइट वाला बटन है. दिस इज डिजाइन थ्योरी. अब इसकी बजाय अगर इन्होंने ये ना लगाया होता तो जब भी मुझे स्लाइड आगे पीछे करनी, मैं ऐसे करके पहले देखूंगा अच्छा आगे का बटन कौन सा, पीछे का बटन कौन सा. दिस इज डिजाइन थिंकिंग. सेकेंडली, इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस. आपको बार बार इस इटरेटिव प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है. आपने जो भी डिजाइन तैयार किया है, जो भी डिजाइन बनाया है, जो इनोवेशन सोची है, उसको बार बार इम्प्रूव करते रहना है. चाहे आप टॉप लेवल पे भी हो, मैकडोनल्ड के बर्गर बिक ही रहे थे, फिर भी उन्होंने इम्प्रूव किया टू गेट मोर एंड मोर बिजनेस. अंडरस्टैंड एंड रीडिफाइन द प्रॉब्लम्स. आपको प्रॉब्लम्स को समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है. मैकडोनल्ड्स ने प्रॉब्लम को समझा. कस्टमर्स को बैठने पे प्रॉब्लम आ रही है, चेयर्स उनकी जो थी वो टूट जाती थी बीच में, या किसी का वो फट्टा ही अलग हो गया. तो अब मैकडोनल्ड जैसे बड़े रेस्टोरेंट के अगर फर्नीचर ऐसा हो तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन. उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया. डिजाइन थिंकिंग प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. कि सॉल्यूशन क्या है, उस चीज का सॉल्यूशन क्या है. delivers empathy with the target users and it gives a hands-on approach to prototyping and testing. ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं. This is iterative process. Redefine the problem. The design thinking basically has 5 phases in it, and it begins with the empathy phase, then define phase, then iterate phase, then prototyping, and then testing. And then after testing, you again come up with the empathy, then define, then iterate, then prototype, and then test. And you can jump from any particular point to any other point in between also. तीसरे से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, पहले से चौथे पे, कभी भी आप बीच में जंप कर सकते हो, पर एटलीस्ट आपको एक आइटरेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप इस प्रोसेस को जंप कर सकते हो. ज्यादातर प्रॉब्लम्स 2 रीजन से आती हैं. नंबर 1, वी एक्ट विदाउट थिंकिंग. बिना सोचे समझे हम कोई एक्शन ले लेते हैं, तो दैट लीड्स अस टू द प्रॉब्लम. दूसरा, वी कीप थिंकिंग विदाउट एक्टिंग. सोचते ही रहते हैं, ठीक है, पर काम नहीं करना. वो कहते हैं आई लव वर्क या वर्क फैसिनेट्स मी
and I can look at it for hours. तो देखते रहना, काम पड़ा हो, करना नहीं है बस. So एक मेरी फेवरेट कोट है, given 1 hour to solve the planet, I would spend 59 minutes in understanding the problem and 1 minute resolving it. आइंस्टीन ने बोला कि अगर प्लेनेट को सेव करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं 59 मिनट्स पहले प्रॉब्लम सोचने पे लगा दूंगा कि क्यों हो रहा है, और सोल्यूशन तो 1 मिनट में मिल जाएगा. मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सोल्यूशन. अगर आपकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो गया, सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा. डिजाइन थिंकिंग में हम इस पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रॉब्लम स्पेस, इस तरफ को, एंड द सेकंड पार्ट इज द सॉल्यूशन स्पेस. प्रॉब्लम स्पेस में हमने क्या करना है, वी स्टार्ट विद द एम्पैथाइज या एम्पैथी स्टेप, एंड दीज पार्ट्स आर 8 शेप्ड. ये ऐसे करके 8 फिगर बनती है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर इज अ डाइवर्जेंस इन द स्टार्टिंग. डाइवर्जेंस मींस कि आप लोग अपनी आंखें खुले रखो, दिमाग खुले रखो, हर तरफ एनालाइज करो. एम्पैथाइज में आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर तरफ एम्पैथाइज करो. लेट्स से मैं ये सोचता हूँ कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए. अच्छा, कोई बंदा लेफ्टी है, उसका कैसे चलेगा, कोई राइट में है, उसको कैसे चलेगा, किसी का अंगूठा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है तो कैसे करेंगे, ये चीजें सारी. उसके बाद then it is converging कि when you have so many things in your mind then you have to converge to a particular point. ठीक है, उसको सारे को समराइज करना है और समराइज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करना है. इसी तरह से फिर आइडिएट और प्रोटोटाइप में भी ऐसे ही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आएगी. ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें आगे चलना है. द फर्स्ट फेज इज द एम्पैथाइज फेज. द एम्पैथी रीफ्यूज आवर स्ट्रेटजी. एम्पैथी से आप अपनी स्ट्रेटजी को एनर्जी देते हो, उसको शुरू करते हो. क्या है इसमें एम्पैथाइज में, यू नीड टू परफॉर्म द रिसर्च एंड यू नीड टू एनालाइज द करंट DEI स्टेट. DEI क्या है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. डाइवर्सिटी क्या बताती है कि आपकी इस केस स्टडी में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज. जेंडर डाइवर्सिटीज, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो सब जेंडर्स के लिए है या मेन ओनली है या विमेन ओनली है, तो आपको अपनी पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करना है. देयर में भी एज डाइवर्सिटी, कि क्या ये छोटे बच्चों के लिए है, ग्रोइंग किड्स के लिए है, अडल्ट्स के लिए है या एल्डरली लोगों के लिए है. क्या आपने उन सबको यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया है स्टडी में कि नहीं. एथनिक डाइवर्सिटी, कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो क्या ये कल्चर्स के लिए सूटेबल है, सारी कल्चर्स इसको अडॉप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी. देन फिजिकल एबिलिटी, कि क्या जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या हर तरह के फिजिकल एबिलिटी वाले लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दिस इज डाइवर्सिटी. देन न्यूरो डाइवर्सिटी, की हर किसी का एक लेवल है सोचने समझने का, रिएक्ट करने का. क्या हर बंदा उसको उस तरह से आपके प्रोडक्ट को सोचेगा, समझेगा, रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. The second thing in DEI is equity. It refers to a fair treatment for all the people. It takes into consideration a person's unique circumstances. कि कोई बंदा अभी उसके क्या circumstances चल रहे हैं, ठीक है, आपने उसको consider करके फिर अपना solution जो है वो solution देना है. Inclusion, E के बाद I है जो. Inclusion refers embrace all stakeholders and enable them to make meaningful contribution. जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स को आपने इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में. हर किसी से उनका व्यू पॉइंट लेना है. ये नहीं बोलना कि नहीं चल तू एक छोटे लेवल पे है या ऑफिस में पियून है और तेरी बात नहीं सुननी या ऑफिसर की बात सुननी है, ऐसा नहीं है. इफ योर प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीबॉडी तो यू शुड ट्रीट देम इक्वल. अब अगली बात कि ये DEI स्टेट के लिए जो आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है वो आप रिसर्च कंडक्ट कैसे करोगे. 2 तरीके हैं उसके. पहला तरीका है इन फील्ड. आप लोग मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके वहां पे ये रिसर्च करोगे.
कैसे रिसर्च करोगे? यू नीड टू ऑब्जर्व द पीपल बिहेवियर। अब सपोज करो आप लोग, जैसे ये पे देख रहा हूँ पिक्चर में, वो लेडी है वहां पे एक नमकीन देख रही है। अब नमकीन को देख के उसको क्या टेस्ट पता लग जाएगा उसका? कभी भी नहीं। सो व्हाट शी इज लुकिंग इनटू दिस प्रोडक्ट? प्राइस और इंग्रेडिएंट्स। पहले आपके माइंड में क्या आया? प्राइस। सो दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, लोग सबसे पहले ये देखेंगे। सो द फर्स्ट पेन पॉइंट फॉर द कस्टमर्स इज द प्राइस। तो आप लोग जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, जैसे सपोज ये भुजिया ही आपने प्लान कर रहा है स्टार्टअप में कि आप लोग भुजिया का स्टार्टअप शुरू करोगे। बॉम्बे में है एक भुजिया वाला, ऐसे ही वो रेडी लगाता था और उसके बाद अब उसका वो मल्टी मिलियन बिजनेस है उस बंदे का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में भुजिया कौन कौन से अवेलेबल है और वो किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो आलू भुजिया हल्दीराम आपको 20 रुपए में दे रहा है और आप दूसरे लोगों को 40-50 रुपए में दोगे? ऐसा तो नहीं है। तो पहली बात हुई प्राइस की आ गई। दूसरा आपने पॉइंट बताया था क्या? इंग्रेडिएंट्स। तो क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोग ह्यूमन सेफ्टी वाले यूज कर रहे हो, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स है वही यूज कर रहे हो? कोई ऐसा आप कंपोनेंट तो नहीं यूज कर रहे जिससे लोगों को ऑब्जेक्शन होगी? लाइक MSG आता है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, टेस्ट डेवलपर होता है, वो फूड में डालते हैं ये लोग, तो ज्यादातर चाइनीज फूड्स में होता है वो। तो क्या वो तो नहीं है? तो कस्टमर्स वो चीज भी देखते हैं। तो दैट यू हैव टू सी, यू हैव टू ऑब्जर्व द पीपल बिहेवियर कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। कैलोरीज तो नहीं देखी? मे बी कैलोरीज भी देखनी हो तो देयर माइट बी सम कैलोरी कॉन्शियस लोग हो सकते हैं वहाँ पे जो कैलोरीज नोट कर रहे हो कि इसमें एक अगर मैं कटोरी खाती हूँ ये नमकीन भुजिया की तो उसमें कितनी कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, वो एटलीस्ट मेरे जैसा लोग तो नहीं देखेंगे वो भी नहीं देख रही होगी, मास्क लगा के शॉप जैसे आजकल ना पैकेट के ऊपर लिखा होता है जीरो ट्रांस ट्रांसफैट्स और ये इस तरह की चीजें हैं। सो आइडिया इज कि आप लोगों ने, जैसे मैंने फटाफट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप लोग क्या देख रहे हो, सबसे पहले लोग प्राइस सबने बोला, तो इसका मतलब कि प्राइस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी बाद में आती है, प्राइस कम्स फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपके पास फील्ड रिसर्च का टाइम नहीं है तो देन यू हैव योर डेस्कटॉप विद यू। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करोगे? गूगल पे आप अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट रिव्यूज फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स। Amazon, फ्लिपकार्ट पे, इवन जैसे मैं कुछ भी प्रोडक्ट बाय करता हूँ जब Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे, तो सबसे पहले मैं उसके रिव्यूज देखता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जनरली देख के पता लग जाता है कि ये फेक रिव्यू है या जेन्युइन रिव्यू है। सो दिस इज बेसिकली नॉट सच अ रिलायबल मेथड, इतना रिलायबल नहीं है, बट स्टिल इट गेट्स यू सम इनसाइट। ठीक है, पर जजमेंटल नहीं होना आपने प्रोडक्ट जब भी ये रिव्यूज पढ़ने हैं। दूसरे लोगों से भी आप फील्ड रिसर्च जो है ना वो ज्यादा बेटर मेथड है। दूसरे लोगों से भी बात करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो कि क्या है। सो क्विकली ब्रिंग आउट योर फोन्स, QR कोड स्कैन करो एंड देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू, मार्केट सिचुएशन एनालिसिस। हो गया सबका सही? मैं इनोवेशन ग्रुप में डाल देता हूँ नहीं तो इसको। ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है ना? नहीं, कोई भी कर सकता है, जो भी जिसने भी मार्केट रिसर्च करनी है। क्लास आ रहा है, क्या फॉर्म आया है? ओके, ये फॉर्म आया है स्टूडेंट्स के लिए। Let me get this form on the screen.
So here we have this form. अपनी ये basic detail आपने भर दी पहले. Understand your market or the situation before you start a new business activity or a new product. You want to update your website or you want to change a process. आपको market पहले study करनी है. What problem you are solving with your product, service or process. पहला इस लिंक को सेव कर लो आप लोग ना, बाद में घर जाके भर लेना आराम से. Think about some product that you want to design और उस product के बारे में आप फिर ये फॉर्म भरोगे जब भी. This is the first step. How does your future customers solve the problem at the moment? जो आपके customers हैं वो अभी फिलहाल कैसे इसको solve कर रहे हैं? I take an example कि आप लोग जैसे लेट्स से कोई ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप है, आप लोगों ने छुट्टियां प्लान करनी है अभी इसके बाद और मई जून में छुट्टियां हो जानी है, तो आप लोग कैसे अपने हॉलीडेज प्लान करोगे? फॉर दैट यू नीड टू हैव हॉलीडे बुकिंग वेबसाइट एंड यू वांट टू स्टार्ट योर हॉलीडे बुकिंग वेबसाइट. तो सबसे पहले आपके जो कस्टमर्स है वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अभी कैसे बुकिंग कर रहे हो. What are the customers or your stakeholders? Do you need others for your solution? क्या आपको दूसरे लोगों की जरूरत है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? लाइक जैसे कॉमर्स वाले हैं तो उनको टेक्निकल बंदे चाहिए होंगे एक ट्रैवल वेबसाइट बनाने के लिए. What are the general trends and developments? ये सारी चीजें आप लोगों ने भरनी है. ठीक है, this is the first step. Then you need to interview your stakeholders. किस तरह के questions आप लोग पूछ सकते हो? You can ask the general questions to your users. क्या है general questions? Like what does holiday mean to you? आप लोग जब holiday सोचते हो तो उसका क्या आपके mind में क्या चीज आ रही है? What do you think of something? इस तरह का question ये general questions हैं. Then you can ask the experience questions, day to day, positive, negative या सरप्राइजिंग एक्सपीरियंसेस कि जब आपने पिछली बार बुकिंग करवानी शुरू की थी तो आपका क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस रहा था और उसका रीजन क्या है. व्हाई इज इम्पोर्टेंट, रीजन पूछना जरूरी है उसका. क्यों आपको ये चीज पसंद आई है या क्यों ये चीज आपको पसंद नहीं आई है. देन यू आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चंस. व्हाट वाज इट व्हेन दिस वाज नॉट अवेलेबल या व्हेन दिस हैपेंड, तो उस टाइम पे ये इसका रीजन क्या है. Then at meta level, what if I provide you another solution, something like that कि इस तरह की कोई इंटरेक्टिव वेबसाइट हो जो मोबाइल पे भी चले और डेस्कटॉप पे भी चले, तो आपका क्या रिस्पांस रहेगा. एंड विश क्वेश्चंस इन द एंड कि आप लोग चाहते क्या हो उस वेबसाइट में, क्या आपको फीचर जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सो दैट यू स्विच ओवर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेक माई ट्रिप और अदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट. ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है एम्पैथी फेज में. Time for question answers. Let's see ki how what you understood with this. What is the main purpose of empathize phase in the design thinking? To generate solution, to get involved with the problem or challenge, or to test the solution. क्या सोचते हो जी? B. To get involved with the problem or the challenge. ठीक है. So empathy phase में आपने कस्टमर बन के सोचना है कि आपको क्या सर्विसेज चाहिए थी या क्या प्रोडक्ट चाहिए था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन प्रॉब्लम्स को या किन चैलेंजेस को या किन पेन पॉइंट्स को आप लोग सॉल्व करना चाहते हो. दैट इज व्हाट वी डू इन द एम्पैथी फेज. What methods you can use during the empathize phase? Market analysis, stakeholders की interview, या brainstorm solutions and develop a prototype. A. So you need to do the market analysis. You need to interview the stakeholders to connect with the empathy phase. The second phase is the define phase. अब आपने enough empathy कलेक्ट कर ली, आपने ये सोच लिया कि कस्टमर्स के क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद उन सारी चीज़ों को आप लोग डिफाइन करोगे. ठीक है, वो पहला फेज ऐसा था डाइवर्जेंस वाला, दूसरा फेज जो है वो कन्वर्जेंस वाला. अब आपके पास पेपर पे
मेन पॉइंट्स कवर होने चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। स्टेक होल्डर्स ने ये बोला था। टारगेट ग्रुप्स आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है। वो टारगेट ग्रुप्स कौन से होंगे? दोज आर गोइंग टू बी योर स्टेक होल्डर्स। लाइक जैसे सपोज करो कि ये ट्रैवल वेबसाइट ही है, तो उसमें टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? उसमें टारगेट ग्रुप्स एडल्ट्स होंगे, ठीक है, 18+ वाले जो लोग पॉकेट से कुछ खर्च कर सकते हैं, या फिर आपके वो सीनियर सिटीजन्स होंगे। तो 18+ वाले ग्रुप्स के लिए आपको वेबसाइट पे कुछ अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। 50+ वाले लोगों के लिए वो आपको धार्मिक पैकेजेस बनाने पड़ेंगे या कुछ इस तरह से, ठीक है। 80 भी चाहते 40 लगाओ। Then you need to summarize your insights। जो आपने एम्पैथी में सोचा उस सब की आपने समरी क्रिएट करनी है, एंड देन यू नीड टू डिफाइन योर टारगेट ग्रुप्स। डिफाइन फेज में आप लोग क्या करोगे? यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एम्पैथी मैप, ठीक है। एम्पैथी मैप कैसे है? ये एक स्क्वायर सा है, इसमें आपने ये बनाना है कि व्हाट यूजर सेज, व्हाट यूजर थिंक्स, what user feels and what actually he does। 4 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। यू कैन इवन ऐड मोर कंपोनेंट्स, अभी अगली स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। पर ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है कि यूजर कहता क्या है जब आपने उसको इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू में उसने बोला क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फील क्या कर रहा है, और वो एक्चुअल एक्शन क्या लेता है। सपोज अगर ट्रैवल वेबसाइट की ही बात करते हैं, तो यूजर ने बोला जी मुझे एक वेबसाइट चाहिए ट्रैवल की, तो आगे अगली स्लाइड पे आ ही जाएगी एग्जांपल। ये है, इस तरह से आपने एम्पैथी मैप क्रिएट करना है एक, ठीक है। इसमें नीचे 2 कंपोनेंट्स मैंने अलग से और डाल दिए, एक पेन और एक गेन का। सो इसमें हियर थिंक एंड फील, सी, से एंड डू, ये आप अलग अलग इसमें स्टेप्स क्रिएट करोगे। कस्टमर ने क्या देखा जब उसने एक वेबसाइट देखी थी जिसपे वो ट्रैवल बुकिंग कर रहा था या हॉलिडे प्लान कर रहा था? कस्टमर बोला जी कि टू मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, बहुत सारी ऑप्शन थी वहां पे। अब जब आप मेक माई ट्रिप खोलोगे तो वहां पे इतनी ऑप्शंस खुल जाती हैं कि आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या चूज करें क्या ना करें। नॉट सो ट्रांसपेरेंट एंड मच कंफ्यूजिंग ऑफर्स, इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। उन्होंने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे लिख दिया कि हॉलिडेज स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000। बंदा सोचता है कि हॉलिडे मैंने तो सोची थी कनाडा जाने की, 10,000 में कनाडा पहुंच जाएंगे। देयर आर कंफ्यूजिंग ऑफर्स, ठीक है। होटल बुकिंग स्टार्ट फ्रॉम 2,000 3,000, तो वो 2,000 3,000 में आपको छोटा सा कमरा मिलेगा, ठीक है, 10 बाय 10 का मैक्सिमम, और कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं। सो देयर आर नो ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस। आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि अभी हम लोग ये लास्ट समर में मनाली गए थे, तो मैंने वो मेक माई ट्रिप से एक होटल की वो बुकिंग करवा ली रूम की, और इट वाज सच अ पैथेटिक रूम। वहाँ पे जाके वो दिखाया उन्होंने कुछ और है पिक्चर में, पर वहाँ पे कमरे कुछ और ही मिला। उन्होंने वो प्रीमियम कमरे जो थे वो अलग से रखे हुए हैं अलग। अगर आप लोग जाओगे उनको बोलोगे कि मेक माई ट्रिप नहीं है, दूसरा कमरा है, तो आपको अच्छी साइट वाला या अच्छे व्यू वाला कमरा दे देंगे, ठीक है। पर अगर आपने एक बार बुकिंग करा ली, पे कर दिया मेक माई ट्रिप पे, देन इट्स देयर चॉइस कि उन्होंने कौन सा कमरा देना है आपको, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट। जो कमरा आपने बुक करना है वेबसाइट पे, वो कमरे की फोटो होनी चाहिए जो वहां पे नहीं थी। दैट इज माय पेन पॉइंट, ठीक है। देन व्हाट कस्टमर्स से कि आई वांट टू टॉक अबाउट माय एक्सपेक्टेशंस। मैं बुकिंग करवाने से पहले होटल वाले से पूछना चाहता हूँ अपनी एक्सपेक्टेशंस। भाई वहाँ पे केटल है चाय बनाने के लिए, ठीक है, सर्दियों में वहाँ पे हीटिंग की फैसिलिटी है कि नहीं है, एसी चलता है कि नहीं चलता है। अगर ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई हैं पर चल नहीं रही हैं, तो देन अगेन फिर वही बात आ गया कि नॉट सो ट्रांसपेरेंट एंड कंफ्यूजिंग ऑफर, वो इसमें आ जाएगा। देन यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट इट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? वही रिव्यूज पढ़ने पड़ेंगे कस्टमर्स के। अब जब मेरे को उसने इस तरह का गंदा सा कमरा दिया, तो मैं तो बड़ा नेगेटिव रिव्यू डाल के आया कि द रूम्स आर वेरी स्टिंकी, डोंट गो फॉर दिस होटल, और वो स्टार रख के आज भी पड़ा हुआ वहाँ पे उसके, ठीक है। अब उससे क्या होगा, बेसिकली जो भी बंदा रिव्यू पढ़ेगा वो देखेगा कि ये स्टिंकी रूम है, भाई मैं 4,000 रुपए पे कर रहा हूँ एक नाइट के, और मेरे को स्टिंकी रूम दे रहे हो, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। एटलीस्ट एक रूम फ्रेशर लगा देते, कुछ वेंटिलेशन की फैसिलिटी होती वहाँ पे, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। सो दे नीड टू डू रिसर्च। देन आई वांट सपोर्ट। अब मैंने तो जो बुकिंग कराई वो तो मैंने मेक माई ट्रिप से कराई, कमरा होटल वाले का गंदा निकला, तो मुझे सपोर्ट कौन देगा? मैं किसका जाके सिर फोड़ूंगा?
होटल वाला बोलेगा जी मेक माई ट्रिप वालों से पूछो, मेक माई ट्रिप वाला बोलेगा जी होटल वालों से पूछो। आई वॉन्ट समथिंग कि जो मेरी बात सुने, सपोर्ट करे, जो कि नहीं हो रहा। देन थिंक एंड फील में आई एम अफ्रेड टू मेक रॉन्ग डिसीजन, कहीं गलती से मैं कोई गलत कमरा ना चूज कर लूं या गलत चीज ना चूज कर लूं, ठीक है। अब ये भी हुआ था वहाँ पे, जब मैं रूम्स देख रहा था तो वहाँ पे एक मुझे ऐसा भी रूम मिला था, होटल मिला था जो रिवर बैंक पे था, ठीक है। वो किस्मत अच्छी थी कि मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया, बाढ़ ही आ गई सारे, वो होटल ही पूरा बह गया। अगर चूज किया होता तो शायद आज प्रेजेंटेशन कोई और दे रहा होता। ठीक है। आई डू नॉट वांट टू मेक एक्सपेरिमेंट्स ऑन माय हॉलिडे बुकिंग। अब क्योंकि सारा साल हम लोग फैमिलीज इंतजार करती हैं, बच्चे इंतजार करते हैं कि कब पापा को छुट्टी होगी, हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। और घूमने के लिए जाने के लिए उनको मैं वो स्टिंकी से रूम में जाके बिठा दूं वहाँ पे, तो उससे तो वो बोलेंगे कि घर ही अच्छा था। इतने 12 घंटे की ड्राइविंग करके जाओ आओ, तेल भी फूका, मजा भी नहीं आया, है ना, तो उसका फायदा कोई नहीं। आई नीड ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर्स, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोकल टूर ऑपरेटर से बात करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यही करते थे, लोकल टूर ऑपरेटर जो काफी हैं यहाँ पे, तो उनसे बात करके उनको पूछ लिया भाई कोई अच्छा सा होटल बता दे, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ लिया कि तू कहाँ पे रह के आया था, फिर उससे वहाँ पे फोन पे बात कर ली भी भाई रूम अवेलेबल है कि नहीं, ये वाला ही रूम चाहिए, बालकनी वाला, व्यू वाला, एंड सो ऑन। तो ये चीजें हैं। देन हियर यू रेटिंग द रेटिंग द रिकमेंडेशंस फ्रॉम अदर ट्रैवलर्स, जो मैं बात कर रहा था कि दूसरे लोगों से पूछो कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे फिर आप अपने डिसीजंस बना सकते हो। And for all this process, what is my pain point? I do not have enough time. अब अगर मुझे आप बोलो कि आप सर मेक माई ट्रिप पे देख लो, कोई रूम अच्छा सा बुक करा लो, तो आई विल बी लीस्ट कंसर्न। वो लास्ट मोमेंट पे जाके जब मैं टाइम निकालूंगा, अच्छा बुकिंग करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, करते हैं, वो चीज़ जो है वो कस्टमर्स को बड़ा मुश्किल लगता है। इतना टाइम, सारे रिव्यूज को पढ़ना, होटल सिलेक्ट करना, कुछ ना कुछ क्विक वे होना चाहिए जिससे आप फटाफट ये सारी चीज़ें कर सको। देन स्ट्रेस ड्यू टू टू मेनी ऑप्शंस, इतने सारे होटल्स देख के बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग दिल्ली गए थे तो थोड़े दिन पहले, तो सर से पूछ लिया था, प्रिंसिपल सर से कि सर कौन सा होटल है बता दो, और वो सही निकला, ठीक है ना। रीजन नहीं वो वही कि आपने दूसरे ट्रैवलर्स जो थे पहले वाले, उन सब से आइडिया ले लिया था कि कौन सा होटल सही है, नहीं तो जाते तो फिर कोई ऐसा उल्टा सीधा होटल मिल जाता। लॉन्ग सिलेक्शन एंड बुकिंग प्रोसेस, कुछ एक वेबसाइट्स पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बड़ा लंबा है। आप लोग वहाँ पे पहले ऑप्शन भरोगे कि कौन सी डेट, कितने रूम्स, कौन से एरिया के आसपास, फिर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो पूछेगा आपका पूरा बायोडाटा पूछेगा जी कौन हो, कहाँ से आना है, कहाँ पे जाना है, आधार कार्ड नंबर दो, पैन कार्ड नंबर दो, क्रेडिट कार्ड नंबर दो, एंड सो ऑन। सो दैट्स अ लॉन्ग बुकिंग प्रोसेस। आई वांट क्विक प्रोसेस कि मैं लॉगिन किया है वहाँ पे, जीमेल से लॉगिन करूँ, वो मेरी डिटेल ऑटोमेटिकली जीमेल से उठा ले, फेसबुक से लॉगिन करूँ, फेसबुक से सारी डिटेल उठा ले, तो एक प्रोसेस पूरा कट ऑफ हो गया। उसके बाद वो मेरे से डिटेल रूम की तो ऑब्वियसली पूछेगा ही कि कितने कमरे चाहिए, सोलो चाहिए, डबल चाहिए, किड्स रूम चाहिए कि नहीं। तो मिनिमल क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए। एंड व्हाट इज कस्टमर्स गेन, इस तरह की वेबसाइट्स पे कस्टमर्स जो है वो नई लोकेशंस उनको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप कई बार जैसे सपोज करो हमने मनाली जाना था, पर वहाँ पे मेरे को अट्रैक्टिव टूर पैकेज टू शिलोंग या दार्जिलिंग या कोई ऐसी लोकेशन मिल गई, तो मेरे पास छुट्टियाँ हैं तो आई कैन एक्सप्लोर। पर अनटिल अनलेस कोई मेरा फ्रेंड अगर रिकमेंड करे तो तभी मैं वहाँ पे जाऊँगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग छुट्टियाँ क्यों मनाते हैं, वी वांट टू रिलैक्स, ठीक है ना। तो और वो जो रिलैक्सिंग है वो छुट्टियों की बुकिंग से ही शुरू होनी चाहिए। अगर आपकी हॉलिडे की बुकिंग स्ट्रेसफुल है तो आपकी छुट्टियां भी स्ट्रेसफुल ही जाती हैं। एंड ऑल दैट आई नीड इज हैप्पीनेस, कि जो आपकी बुकिंग एक्सपीरियंस है वो हैप्पी रहे। सो इस तरह के आपको एम्पैथी मैप क्रिएट करने हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो आई गिव यू एन एक्सरसाइज। लेट्स से अब आगे समर आने वाली है, तो आप लोग प्लान करते हो कि आपने वेट टिश्यूज मैन्युफैक्चर करने हैं। कौन कौन यूज करता है वेट टिश्यूज फेस साफ करने के लिए गर्मियों में?
कोई भी नहीं, ऑडियंस ही गलत है। लेट्स टेक सम अदर प्रोडक्ट। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक आप लोग लाइक करते हो, एनर्जी ड्रिंक्स लाइक करते हो। एनर्जी ड्रिंक्स की काफी बड़ी मार्केट है, रेड बुल, स्टिंग और ये वो। कौन सा सबसे बेस्ट है? रेड बुल। व्हाट इज द रीजन? किक मिलती है और प्राइस ब्रांड है, ठीक है। सो यू नीड टू लॉन्च लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक इन द कमिंग टाइम। तो उसके लिए आप इस तरह का एम्पैथी मैप क्रिएट करोगे कि कस्टमर्स क्या बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई रेड बुल पीता है, उसने पी लिया पर उसको टेस्ट नहीं अच्छा लगा, तो वो चीज़ें आपको नोट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि रेड बुल इस टेस्ट के साथ हर टाइम पे चलता ही रहेगा, दे नीड टू इम्प्रूव। तो वो इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब आप इस तरह से एम्पैथी मैप अपना क्रिएट करोगे।